Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again. So, we have completed your seed dormancy, and your seed dormancy has been completed in 4 parts. I hope you have gone through them. And in the previous lecture, I asked you one question, and the answer of that question is positive photoblastic seed. तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. These are those seeds which require light for their germination. और इनका अपोजिट होता है नेगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स. इट मीन्स जो कि लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं, रेदर डोमेंट रहना पसंद करते हैं. ओके, सो टुडे वी हैव कम अप, इट मीन्स आई हैव कम अप with the new chapter, that is crop weed competition, and this particular chapter will also be taken in parts. So here I am starting the first part. So without much ado, let us start crop weed competition. So this weed competition is very, like very well known or familiar term, I think so. And according to Oxford English Dictionary, तो अगर सबसे पहली बात हम इंग्लिश डिक्शनरी की ही बात करें, तो जो कंपटीशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इट इज एन एक्शन of endeavoring to gain what another endeavors to gain at the same time, the striving of two or more for the same object, hence rivalry. It means, तो इंग्लिश के थ्रू अगर हम देखें, नॉट बायोलॉजिकल और नॉट साइंटिफिक डेफिनेशन, तो इंग्लिश के थ्रू अगर हम देखें तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि कोई ऐसा एक्शन जिससे हम ट्राई कर रहे हैं एक गेन करने की वो चीज जो कि दूसरा भी चाहता है एट द सेम टाइम. और इसीलिए वो दो या दो से ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और राइवलरी शो कर रहे हैं फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, सो दैट दे कैन हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो मोर ओवर दिस टू compete, ये जो compete word है, it has been derived from the Latin word competere, which means to ask or sue for the same thing another does. तो ये लैटिन वर्ड है competere, जिसका मतलब होता है कि वही चीज चाहना जो कि दूसरा कोई चाह रहा है. ठीक है, ओके. सो मूविंग ऑन, let us talk about, like, and always remember it is opposite to cooperation. So competition is always opposite to cooperation. Now, according to Eldridge, now let us talk about the agronomic one or the ecological one, the the scientific definition of it. So in 1984, Eldridge said that competition is nothing but a relationship between two or more plants. So here we are talking about crop and weed competition, so I'm referring plants here. Okay, so competition is relationship between two or more plants in which supply of growth factors falls below their combined demand. Always remember. तो suppose करिए दो plants हैं या दो से ज्यादा plants हैं और अगर उनकी combined demand fulfill नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, compete करेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, मॉइस्चर हो सकती है, गैसेस हो सकती हैं, स्पेस हो सकता है, बहुत सारे. तो अगर उनकी सप्लाई उनकी कंबाइंड डिमांड से शॉर्ट करती है तो वो एक दूसरे से compete करना शुरू करेंगे. ओके, सो द कंपटीशन और द कंपटीशन डज नॉट स्टार्ट as long as the growth factor is abundant in supply. तो जब तक वो फैक्टर abundant है, plenty है उसका, तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनकी कंबाइंड डिमांड फुलफिल हो रही होगी. ओके, बट and does not fall below the combined demand. However, it starts immediately when the growth factors fall short in supply. तो यही बात अभी हमने कही कि कंपटीशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, उनकी कंबाइंड डिमांड को सप्लाई नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इन द एग्जैक्ट सेंस, two plants, no matter how close they are, they do not compete with each other as long as the water content, the nutrient material, the light and heat, they are in the excess of the need of both. तो जब ये सारी चीजें उन दोनों की कंबाइंड डिमांड से ज्यादा हैं तो इट डजेंट मैटर कि वो कितने क्लोज हैं, ठीक है, वो compete नहीं करेंगे जब तक कि उनकी कंबाइंड डिमांड फुलफिल होती रहेगी. सो आई होप दिस कॉम्पिटिशन इज क्लियर नाउ कि व्हाट इज कॉम्पिटिशन. Okay, now
लेट अस डिस्कस इंटरफेरेंस वर्सेस कंपटीशन। तो होता क्या है कि बहुत बार हम सिर्फ कंपटीशन मतलब कंसीडर करते हैं, बट कंपटीशन इज वन ऑफ द इंटरैक्शंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट components which we'll be taking up in this particular video only or lecture. ठीक है, so let us discuss what is the difference between interference or competition, okay, and competition. So in ecology, the total detrimental effect of one plant species on the another resulting from interaction with each other is called interference. तो जो भी टोटल डिट्रीमेंटल इफेक्ट है एक प्लांट स्पीशीज का दूसरी प्लांट स्पीशीज पर, ठीक है, और किसके थ्रू हो रहा है वो, बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ कंपटीशन इज वन ऑफ द इंटरेक्शन, देयर आर नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो कि चल रही होंगी वहां पे उनके बीच में, उन सम के सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो होल और डिट्रीमेंटल इफेक्ट है वीड्स का ऑन क्रॉप प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन विद ईच अदर was termed as interference by Harper. तो ये वर्ड किसने दिया, हार्पर ने दिया 1960, ओके, एंड 1960 ये डेट बहुत ही ये ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल में आपकी जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, GBPUAT, वो एस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। ओके, सो तो हार्पर के अकॉर्डिंग जो इंटरफेरेंस है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल एज एलिलोपैथी, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो एलिलोपैथी क्या है, वी विल डिस्कस ओके इन द लेटेस्ट स्लाइड्स। Now, it means the crop weed interference or simply interference. It may sound more scientific and appropriate than the crop weed competition. ओके, तो क्रॉप वीड कंपटीशन से ज्यादा साइंटिफिक साउंड करता है क्रॉप वीड इंटरफेरेंस, क्योंकि ये पता लगाना बड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्यों detrimental effect हो रहा है, whether it is because of competition only between the plants, whether it is because of allelopathy, and there are number of interactions going on between the plants. तो हम ये बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाते whether it is solely because of competition. तो ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि there are number of interactions, इसीलिए interference is more scientific. Okay, so according to Mueller in 1969, तो हार्पर ने तो दो चीजों को कंबाइन किया, कंपटीशन प्लस एलिलोपैथी, एंड दैट इज इक्वल टू इंटरफेरेंस। बट अकॉर्डिंग टू म्यूलर ने क्या करा, ही हैज टेकन 3 इंटरेक्शंस हियर, एलिलोपैथी, एलिलोस्पोलाई एंड एलिलोमेडिएशन। इसने 3 इंटरेक्शंस की बात करी और उसने बोला कि ये तीनों क्या है, पोटेंशियल कॉजेज हैं इंटरफेरेंस की। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये एलिलोस्पोलाई क्या है, एलिलोमेडिएशन क्या है, सो डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी रिपीट दिस वन कि म्यूलर ने क्या कहा, दैट इंटरफेरेंस एज ओवरऑल इन्फ्लुएंस और द एडवर्स इफेक्ट of one plant including microbes, always remember, including microbes on another plant growing in the association, and pointed out allelopathy, allelospoli and allelomediation are the potential causes of interference. Okay, so let us take the different components or the causes of interference one by one. तो जो अभी तक हमने बात करी कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस हो सकती हैं, हम उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो नाउ यू सी एलिलोस्पोलाई, तो जो हम कंपटीशन है, कंपटीशन को ही हम एलिलोस्पोलाई बोलते हैं। ओके, सो कंपटीशन इज सिनोनिमस टू एलिलोस्पोलाई, इट मींस व्हिच इन्वॉल्व्स द डिप्लीशन of one or more growth resources between species growing in association in the same habitat. Okay, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। So let us discuss allelopathy. So allelopathy, allelo means mutual और pathos means to suffer. तो एक दूसरे को suffer करना mutually, ठीक है, is known as allelopathy. ओके, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि there is a release of chemicals by one or more species in the association. तो होता क्या है कि एक प्लांट स्पीशीज सपोज करिए कुछ अपने अंदर से केमिकल्स रिलीज करती है, जिनको हम एलिलोकेमिकल्स और एलिलोकेमिक्स बोलते हैं, ठीक है, दे कॉज सर्टेन इन्फ्लुएंसेस ऑन द रेसिपिएंट स्पीशीज। तो जो उसको अपटेक कर रहा है, जो उसके विसिनिटी में आ रहा है, उस रेसिपिएंट स्पीशीज पर कुछ एलिलोपैथिक इन्फ्लुएंस होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज एलिलोपैथी।
तो हमेशा जो बुक्स में ज्यादातर दिखाया गया कि एलिलोपैथी इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल और नेगेटिव इन नेचर, बट ऐसा नहीं है, कभी कभार ये स्टिमुलेटिंग नेचर की भी हो सकती है। ओके, सो एलिलोपैथी पे हम एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो अभी सिर्फ आप इसका एसेंस जाने, व्हाट इज एलिलोपैथी। एंड देयर आर, सो एलिलोपैथी हो रही है तो एलिलोकेमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, एंड देयर आर एलोमोन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एलोमोन्स क्या होता है। सो एलोमोन्स, which are none but the allelochemicals only, and they offer certain adaptive advantages to the producer plants like repellents and attractants. तो suppose करिए अगर कोई A species है, वो ऐसे एलिलोकेमिकल्स रिलीज कर रही है जिसकी वजह से उसको खुद को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ जो प्रोड्यूसर है उसी प्लांट को क्या हो रहा है, कुछ एडेप्टिव एडवांटेजेस हो रही है। तो सपोज करिए अगर उसको लगता है कि इट इज बीइंग अटैक्ड बाय सम इंसेक्ट्स, तो वो कुछ रेपेलेंट्स अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगा जो कि एलोमोन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर ये ऐसे एलिलोकेमिकल्स होंगे जो कि अडेप्टिव एडवांटेजेस तो देंगे, लेकिन किसको, सिर्फ प्रोड्यूसर प्लांट को, रेसिपिएंट को नहीं देंगे। एंड माय क्वेश्चन इज टू यू इज कि अगर ऐसे एलिलोकेमिकल्स को क्या बोलते हैं जो कि प्रोड्यूसर प्लांट्स को अडेप्टिव एडवांटेज नहीं देता है, रेदर जो रेसिपिएंट है, जो लेने वाला है, उसको एडवांटेज देता है, तो उन एलिलोकेमिकल्स को क्या बोलते हैं। तो इन वालों को तो मैंने आपको बता दिया, एलोमोन्स। नाउ यू नीड टू आंसर कि जो रेसिपिएंट प्लांट को एडवांटेज देंगे, उन एलिलोकेमिकल्स को क्या बोलते हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ओके, सो लेट अस मूव ऑन। ऑटोटॉक्सिसिटी इज द थर्ड वन, थर्ड इंटरैक्शन। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब खुद के लिए जहरीला, खुद के लिए टॉक्सिक। सो टॉक्सिसिटी विद इन द सेम स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वीट अगेंस्ट वीट, अगर हमने वीट लगाया, देन अगेन रोटेशन में वीट लगाया, तो अगर वो वीट और अपने आप को ही क्या कर रही है, टॉक्सिक हो जा रही है कुछ केमिकल्स रिलीज करके और व्हाटसोएवर, तो ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। लाइक ग्रीन ग्राम अगेंस्ट ग्रीन ग्राम, अल्फा अल्फा अगेंस्ट अल्फा अल्फा, ठीक है। सो इट यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द रोटेशन ऑफ द सेम क्रॉप, कि एक क्रॉप आपने लगाई, फिर दोबारा वही क्रॉप लगाई, तो मे बी उस पे क्या हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट हो सकता है। एंड इट मे ऑल्सो अकर साइमल्टेनियसली, बट इट इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो बेसिकली रोटेशन में ये पाया गया। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एलिलोपैथी ओनली। जो ऑटोटॉक्सिसिटी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एलिलोपैथी ओनली, एंड इट इज नोन एज ऑटो एलिलोपैथी। इट मीन्स अपने आप को ही वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, जो रिलीज कर रहा है वो अपने आप को ही सफर कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो इनहिबिशन। इट इज ऑल्सो नोन एज auto inhibition. Okay, so moving on, the last one is allelomediation. ये बहुत लोगों को नहीं पता होता allelomediation होता क्या है। So it involves the selective harboring of a herbivore that might selectively feed on one species and thus lending advantage to the another. अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज करिए एक एनिमल है, ये काउ है, सपोज करिए वो ग्रेजिंग के लिए जाती है, और ग्रेजिंग लैंड पे सपोज करिए दो तरह के फॉडर लगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि बरसीम लगा है और सपोज वहीं पर आपका लूसन लगा है। ओके, तो अगर वो आपका जो एनिमल है वो सिर्फ बरसीम को क्या करता है, सेलेक्टिवली ग्रेज करता है, तो होगा क्या, अब उस एनिमल ने तो सेलेक्टिवली हार्बर करा है, ओके, ग्रेज करा है, तो क्या होएगा कि ल्यूसेन के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बरसीम तो ऑलरेडी किसने खा ली है, आपके एनिमल ने खा ली है। सो इट मींस इट गिव्स एन एडवांटेज टू द अनदर, ठीक है। तो हुआ किसकी वजह से, उस एनिमल की वजह से। सो इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्टिव हार्बरिंग ऑफ अ हर्बीवोर, कि एक हर्बीवोर ने क्या करा कि सेलेक्टिवली फीड किया एक स्पीशीज पे, और उसकी वजह से जो दूसरी स्पीशीज थी उसको एक एडवांटेज मिल गई। So this is also one of the interaction. Okay, so I hope it is clear. Okay, so this is all for the day, and I'll come up with the new part of crop weed competition. अभी बहुत कुछ बताने को है, ठीक है, बट ये बहुत ही बेसिक था, और बेसिक होते हुए बहुत जरूरी भी है। As I always say, B stands for basic and B stands for base. और तो base अगर आपका strong होगा तो you can easily create a building on it. So that's for the today, and I hope you all are doing well. So do press the bell icon and do like, share, comment and subscribe my YouTube channel Agri-Tutorial, and ask your friends to watch the lectures to enrich the knowledge. So thank you very much class. This is all for the day.